तो अभी आज की क्लास में और ट्यूसडे की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो वेडनेसडे की क्लास में कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? ललित? यस सर, दिख रही है सर। ड्राइंग है सर। So now दिख रही है। we have started the unit 5th.
that is gear drive and gearboxes. You can see here in the first figure, the gearbox is shown, the front view is shown, and then the top view is shown, and the end view is also shown. Sometime for describing it more clear view, this type of the drawing are drawn where the description is given properly. However, the size is very small, so things may not be clear. Complete drawing with the complete description. A drawing showing the front view, top view as well as the end view. So you have been doing this type of the drawing in your diploma engineering, where the full drawing is drawn. Nowadays, these things are generally being done on the different softwares like AutoCAD or other CAD CAM software in the sketch modules. All these Creo, CATIA, SolidWorks have a sketch module, and there you can have these drawings. The additional feature in these softwares that these drawings, if you draw these things in the sketch, you can directly go in their solid model from these drawings, or you may go to the full sectional elevation. For example, the full section elevation for these drawings may be like, for example, if you consider this a gearbox, a full gearbox, solid view. So the solid view is shown here, complete assembled. Gearbox is one of the such machine component which have mostly all the other machine elements. Like we have discussed the shaft, so there will be a shaft. We have discussed the bearings, there will be the bearing. We have discussed the gears, there will be the gears. So all these elements we have discussed here. So these elements are there in the gearboxes. So as far as when you go for the design of the gearboxes, the shaft design is the same as we have already discussed. Gear design is same we have already discussed. Bearing selection will be the same procedure what we have already discussed. As far as casing is concerned, outside the structure, so for this we have the empirical relations. For this we have the empirical relations, and we follow those empirical relations for these casings. So I will try to arrange those paper material, and I will upload it on the class group. That what the empirical relations are required for designing of the casing part. Mubin and Mubin is a book in which it is given properly. Gear drive is one of the such unit that
most of the books you will not find it. So as far as the different elements of the gear design are concerned, that we will design on the same way as we have discussed earlier. However, the basic purpose of the gear drive is to change the velocity ratio. So that is done either in 2-stage or in 3-stage, depending upon the gears which are there. So how we change the velocity ratio, or what treatment is required in the form of the numerical solution. So that is with the help of the gear ratio. That will be discussed by the Asmama Sahab, how to get the different gear ratios for the different speed reductions, whatsoever the required speed or a level speed is there, and we want to do it, which type of the reduction is required, or which type of the velocity ratio is required. These are the different gear drives or the gearboxes. Gearboxes are also is depending upon the type magnitude of the power to be transmitted. Accordingly, the gear drives are there. In the heavy industry, different sugar mills or different roller mills or other places, we use the heavy gearboxes and gear drives. However, in the small places or in the gearboxes or in the automobiles, we use the small gearboxes. It is also possible that you may change the direction of the input and output axis by changing the different type of the gears inside the gearbox. That the input axis and output axis may be with a perpendicular to each other, depending upon the requirement or depending upon the application or depending upon the design. There are a lot of advancement in the gearboxes. A lot of advancement has occurred in the gearboxes. We are not going to discuss those things. That will be discussed in the automobile actually. A lot of modern gearboxes are coming here. We will be discussing the basics and fundamentals of the gearbox. Whatsoever maybe the gearbox are there, what are the basic things are in a gearbox. So basic structure, basic casing, basic component, basic element design, that will be discussed in detail in the gearboxes, or we say the gear drives. So today, as I am not feeling well and I will not be continuing the lecture, I will be discussing the things on the next Tuesday. Next Tuesday will be 12th. So on 12th and 13th we will be taking up the portion of the gearboxes. You have your sessionals, second round of the sessional from 20th. कब से हैं सेकंड सेशनल? Yes, sir. Yes, sir, 20th. Yes, sir, 20 sir. 20 से. तो फर्स्ट सेशनल में हम लोगों ने कोर्स में क्या दिया था आपको? फर्स्ट सेशनल में क्या चीज पूछी गई थी आपसे? कौन सी यूनिट थी? सर शाफ्ट और रोलर बेयरिंग था सर. शाफ्ट एंड रोलर बेयरिंग, दो चीजें थी. Yes, sir. तो ठीक है, ये जो सेशनल होना है आपका 20 को है ना? 20 को पहला सेशनल हमारा ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली. Yes, sir. Yes, sir.
तो 20 को जो सेशनल होगा उसका सिलेबस रहेगा जनरल बेरिंग एज वेल एज गियर्स। ठीक है सर। और बढ़ा दें क्या? नो सर। क्योंकि बेल्ट भी कवर हो चुकी है आपकी। चलिए अभी इतना ही रखते हैं। जनरल बेरिंग और गियर्स, ये सिलेबस आपका रहेगा जो 20 तारीख को सेशनल होगा इसके लिए। और फिर बाद में मेकअप सेशनल जो होगा, जिन लोगों का इम्प्रूवमेंट वगैरह होगा या फेल वेल हो जाएंगे जो लोग सेशनल में, उनके लिए फिर बाद में ये कर लेंगे हम कि बेल्ट का पोर्शन और गियर ड्राइव का पोर्शन फिर उसमें ले लेंगे लास्ट वाले सेशनल में, जिसको इम्प्रूवमेंट सेशनल कह सकते हैं। मार्क्स आपके दोनों सेशनल के फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम दिखा पाएंगे दोनों के मार्क्स एक साथ ही। और दूसरी चीज ये है कि आपका एक प्रैक्टिकल का डिजाइन प्रैक्टिस का एक वाइवा होना है, ऑनलाइन वाइवा होगा और उसके लिए आपको अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है। तो जितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं इतनी प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व कर लीजिए और आपको 2 प्रॉब्लम्स और सॉल्व कराई जाएंगी। अभी गियर ड्राइव में बस 2 प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएंगी। तो उन 2 प्रॉब्लम अभी तक ललित टोटल प्रॉब्लम्स कितनी हो चुकी हैं आपको अंदाज है? सब 30 के आसपास तो हो गए नहीं यार 30 का होंगे, 30 हो गई हैं सर। जैसे कुछ तो नोट्स में भी दी गई हैं। हाँ कुछ आप लोगों ने कराई सर, कुछ नोट्स की अलग प्रॉब्लम थी जी। तो 20 के आसपास तो होंगी सर। हाँ 20 के आसपास होनी चाहिए मेरे अंदाज से। ठीक। तो इन प्रॉब्लम्स को आप लोग कर डालिए, सॉल्व कर डालिए। ठीक। और प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होगा वो आप लोग लिख लीजिए। लिख लें सब लोग आप लोग कि वेरी फर्स्ट यू विल राइट द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपको दी गई है वो प्रॉब्लम लिखेंगे। प्रॉब्लम देने के बाद सॉल्यूशन जो शुरू करेंगे उसमें वेरी फर्स्ट डेटा गिवन, डेटा गिवन अगली हेडिंग आपकी होगी डेटा गिवन। तो उसमें जो प्रॉब्लम में जो डेटा दिया गया है उसको सब लोग लिखेंगे। फिर पैरामीटर्स आस्क्ड, उसके अंदर आपसे कुछ पूछा गया होगा, कहीं पे नंबर ऑफ टीथ पूछा गया होगा, कहीं डायमीटर पूछी गई होगी, कहीं और इस तरह से कोई चीज पूछी गई होगी। जो कुछ पूछा गया है वो पैरामीटर आस्क। फिर इसके बाद फार्मूलेशन, जो फार्मूला आप उस प्रॉब्लम के अंदर यूज करने जा रहे हैं उस प्रॉपर फार्मूले को पूरा लिखेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे, टर्मिनोलॉजी उसकी डिस्क्राइब करेंगे उस फार्मूले की। फार्मूलेशन के बाद जो है आपको स्केच डायग्राम प्रॉब्लम का, जो भी लाइन डायग्राम बनाना होगा, आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बनाने के लिए हम कह रहे हैं आपसे, लाइन डायग्राम बनाने के लिए कह रहे हैं कि लाइन डायग्राम आप बनाएंगे उस प्रॉब्लम का। और लाइन डायग्राम के बाद फिर आप उसके बाद जो है कैलकुलेशन पार्ट शो करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट शो करेंगे और फिर फाइनली आंसर होगा। ये फाइनल जहां पे आप आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद आपको उस क्वेश्चन के अंदर 3 थ्योरी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शेफ्ट की कोई प्रॉब्लम थी जिसके अंदर शेफ्ट डायमीटर कैलकुलेट की गई थी और कहा गया था कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी दोनों यूज करिए आप। अब जब आपका आंसर आ जाएगा, आंसर के बाद आपको 3 क्वेश्चंस उसके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आप उसके अंदर कौन से 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, फिर उसका आंसर लिख दीजिए। फिर व्हाट इज इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, उसका आंसर लिख दीजिए। और फिर उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। 3 क्वेश्चन हो गए।
इन तीनों के आंसर लिख दीजिए आप। आंसर आपका क्वेश्चन इस तरीके के हो कि आंसर 3-4 लाइन से ज्यादा करना हो बस। ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका वाइवा होगा, इसका फाइनल एग्जाम में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा और वाइवा होगा, तो हम यही फाइल आपकी उसको दे देंगे तो उसको आसान हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे इन्हीं क्वेश्चन में से उसको वो भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आपसे सॉल्व कराएगा नहीं एग्जाम में, यहाँ पे बैठ के वाइवा में इतनी बड़ी बड़ी 4-4 पेज की प्रॉब्लम होगी, तो उसको अंदाज लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको पूछने हैं। तो ये अगर आपके 20 प्रॉब्लम्स होगी और सब में 3-3 क्वेश्चन लिखे तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। मगर ये कोशिश आप लोग ये करें कि क्वेश्चंस अलग अलग हो, ये कॉपी एक दूसरे की ना करें आप। तो अब आप ये बताइए कि ये 20 क्वेश्चंस जो आपके हैं जो क्लास के, आप बाय द वे आप 13th हम कोर्स को खत्म कर देंगे। 13th में अगले ट्यूसडे वेडनेसडे में क्लास लेके और आपकी 4th यूनिट का जो गेट ड्राइव का पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा। 12th की क्लास हम लेंगे और 13th वाली क्लास जो है आज मोहम्मद साहब साथ में लेंगे और वो जो गेट ड्राइव की जो प्रॉब्लम है वो खत्म करा दी जाएगी। तो अब उसके बाद अब आप ये हमको बताइए, डेट दीजिए कि किस डेट तक आप लोग ये फाइल सबमिट कर देंगे, क्योंकि ये अलग चीज है। आप चीज को आपको ये क्लियर कर दें यहाँ पर हम आपको हमें दोनों एग्जाम अलग अलग हैं। ये डिजाइन प्रैक्टिस एक अलग कोर्स है आपका पूरा, तो हमको आपको थ्योरी को अलग इवेलुएट करना है। तो थ्योरी आपकी 100 नंबर का पेपर है और 50 नंबर का सेशनल है। तो पेपर तो जब होगा तब होता रहेगा, और ये जो सेशनल 50 नंबर का है ये प्रोसेस चल रहा है आपका, और हमने आपको शुरू में कंपोनेंट्स बताए थे, उन कंपोनेंट्स को कंप्लीट करके हम सेशनल के मार्क्स फाइनल करेंगे। इसके साथ साथ 50 मार्क्स का आपका ये और है डिजाइन प्रैक्टिस का, ये अलग है। तो इसमें 50 मार्क्स में 20 मार्क्स एग्जामिनर भेजे, जब आएगा वाइवा होगा तब वो होंगे, और 30 मार्क्स का हमको सेशनल आपका भेजना है, फाइनल करना है। तो वो जो सेशनल हम फाइनल करेंगे, एक जो ये आप क्वेश्चंस सॉल्व करके सबमिट करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे, तो 20 नंबर का हम लोग ये ले लेते हैं, और 10 नंबर में हम लोग किसी दिन ऑनलाइन वाइवा ले लेंगे, तो आपको अंदाज भी लग जाएगा किस तरीके का वाइवा होता है। हमारा मोहम्मद साहब बैठ जाएंगे तो वो आपका वाइवा हो जाएगा। तो 30 मार्क्स आपके सेशनल के हम फाइनल करेंगे। तो अब आप लोग ये बताइए कि ये कब कर लें। ये डेट देखिए, हम कैलेंडर ऑन करते हैं। सेशनल कब तक है? 20 से शुरू होकर कब तक जाएगा ललित? 25 तक है सर। 20 तक, 25 तक है। तो आपको एक हफ्ता हम और दिए देते हैं, 30, 31, और फिर ये अक्टूबर के बाद आ जाइए, नवंबर में आ जाइए आप, ठीक है। तो नवंबर में हमारा ट्यूसडे 2 तारीख को है, वेडनेसडे 3 तारीख को है। तो या तो 2-3 को कर देते हैं, 2-3 ठीक रहेगा, क्योंकि एक दिन में सबका हो नहीं पाएगा, 2 दिन में करना पड़ेगा, या फिर 9-10 को कर देते हैं सर। सेशनल के बाद फिर उसके बाद वो भी होगा सर हमारा सेकंड पीपीटी होगा सर प्रोजेक्ट के लिए। अरे तो वो एक दिन होगा यार, किसी दिन हो जाएगा वो, उसकी बात मत करो हमको। तो सर उसके बाद ही रख लेगा? नहीं, उसके बाद नहीं रखेंगे हम। हमें या तो 2 से 3 की डेट रखिए या 9 से 10 की डेट रखिए, उसको इससे मत लिंक कीजिए आप। सर 9 से 10 कर दीजिए। 9 से 10 की डेट रहेगी, 9 से 10 कर दिए सर। तो 9 और 10 की डेट हम ब्लॉक कर रहे हैं। इसमें कोई इवेंट आपकी नहीं होगी किसी भी तरह की। आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन अपना जो भी डेट अनाउंस होगी उसमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन किसी दिन शाम को होगा, उसमें आप लोग कर दीजिएगा, उसको इससे मत लिंक कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अदरवाइज फिर प्रैक्टिकल में फेल फाल हो जाएंगे। हमसे मत कहिएगा कि साहब प्रैक्टिकल में फेल हो गया मैं, बाद में लड़कों के इश्यूज हो जाते हैं, सब भागते फिरते रहते हैं, 2-2 साल भागते हैं लड़के, एक प्रैक्टिकल में मार्क्स रुक जाते हैं। तो ये 9 और 10 की डेट हम फिर फाइनल कर रहे हैं। हेलो, ठीक है सर। जी सर, ठीक रहेगा सर, ठीक रहेगा। हाँ, तो आप लोग रोल नंबर कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? 68 कितने हैं? 77 होंगे सर। अच्छा, 77 है। तो रोल नंबर ऐसा कर लेते हैं कि 1 to 35
फर्स्ट डे ले लेंगे और 35 ऑनवर्ड सेकेंड डे ले लेंगे। 9 तारीख को रोल नंबर 1 to 35 की रेंज में जो भी आ जाएंगे उनको ले लेंगे और 35 ऑनवर्ड जो होंगे उनको 10 तारीख को। मगर फाइल सबमिशन जो होगा वो आप 8 तारीख को कर दीजिए, वो सबका एक साथ हो जाए, क्योंकि वाइवा से पहले फाइल सबमिट हो जाए, हम फाइल चेक होगी, वाइवा में फाइल चेक होगी। तो आपका ये सैटरडे संडे पा रहा है 6-7 को, आप 8 को फाइल सबमिट कर दिए, 9-10 में वाइवा हो जाएगा। ठीक है सर। तो 8 नवंबर हमने काफी डेट आपको काफी टाइम दे दिया है, बस सेशनल आपका 25 को खत्म हो रहा है। इतने दिन में आप लोग आराम से फाइल वगैरह बना लेंगे। अच्छा, फाइल बनाने का हमने आपको हेडिंग्स तो बता दी। अब आप कुछ मत कीजिए, आप सिंपल जो प्रिंटिंग पेपर होता है, प्रिंटिंग पेपर ले लीजिए और यह जो लैब रिपोर्ट का पेपर होता है, वन साइड रूल्ड एंड अदर साइड ब्लैंक, उसको ले लीजिए और उसके ऊपर प्रॉब्लम नंबर वाइज लिखिए। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर जो है सबका पूरी क्लास का एक ही रहेगा, ये नहीं अलग हो जाए सर कि पता लगा सर जो ऑर्डर होगा। ललित, ये ऑर्डर आप फाइनल कर लीजिएगा प्रॉब्लम्स का। ललित, ठीक है सर। आप प्रॉब्लम्स का ऑर्डर फाइनल करके एक बार हमको दिखा दीजिएगा, वही प्रॉब्लम्स का ऑर्डर सबके पास रहेगा। हर आदमी का ऑर्डर चेंज नहीं हो जाएगी। पता लगा गियर ड्राइव में किसी का सीरियल नंबर कुछ हो रहा है, बेल्ट ड्राइव में किसी का सीरियल नंबर कुछ हो रहा है, तो फिर हम लोगों को इवेलुएट करने में परेशानी होगी काफी। लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम सर, हाँ वो बना लीजिए सारी की सारी, और वो फिर सर्कुलेट कर दी जाएंगी जो है सब स्टूडेंट्स को। ठीक है सर, जिस तरीके से स्टार्ट हुआ उसी तरीके से क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हैं पहले। हाँ, तो हम चाह रहे हैं सेट करके पूरी क्लास में यूनिफॉर्मिटी रहे, जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से एंड हो रहा है, बस वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ललित, हो जाएगा ये सर? वो कोशिश करेंगे सर, क्योंकि उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा टाइप वाइप करने में। या तो सबको पता ही है, जैसे जैसे कराई है वैसे ही कर लेंगे सर। और फिर अलग हो गई तब फिर हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी सर। उसमें परेशानी कैसे होगी? मतलब 20-30 होंगी सर। नहीं, तो परेशानी ऐसे हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ और है और कासिम का क्वेश्चन नंबर 5 और है और अतीकुर रहमान का क्वेश्चन नंबर 5 कुछ और है, तो हमें इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हम चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका हो वही कासिम का हो, वही अतीकुर रहमान का हो, वही मैशर का हो, वही तौकीर का हो, सबका पूरी क्लास का वही क्वेश्चन नंबर 5 हो, उसी वही क्वेश्चन नंबर 6 पूरी क्लास का सेम हो। ये चीज मेंटेन करनी है। ठीक सर। वैसे तो जो लोग बड़ी तादाद में जो नकल करेंगे उनका तो ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाएगा, जो लोग कॉपी करेंगे बड़ी तादाद में उनका तो ऑटोमेटिकली सेव हो ही जाएगा। मगर कॉपी के अगर होगा और वाइवा में जो इवैल्यूएशन के टाइम पे अगर अंदाज होगा कॉपी होगा, कॉपी किया है आपने और आपको आता जाता कुछ नहीं है, तो आपके अननेसेसरी मार्क्स कटेंगे। सर लेकिन उसमें थ्योरी तो हमें अलग लिखना होगा, क्योंकि सर न्यूमेरिकल तो सेम रहेगा लेकिन थ्योरी का पार्ट तो अलग रहेगा सर। जी जी, हमने इसीलिए तो कहा है कि क्वेश्चंस आपके अलग होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन आप लोग फ्रेम करेंगे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद में, तो वो जो है तो ललित आप ऐसा करिए, हेलो, हाँ जी सर, कि पहले आप सारे क्वेश्चंस लिख डालिए अलग अलग पेज के ऊपर, सोल्यूशन मत लिखिए, वो तो आपको लिखने ही पड़ेंगे जो अपना अपना बनाएंगे आप। तो सारे क्वेश्चंस आप लिख डालिए और वो क्वेश्चंस क्लास में सर्कुलेट कर दीजिए। सोल्यूशन फिर लोग अपना अपना करते रहेंगे और आप जब क्वेश्चंस लिख लेंगे फिर उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देते अपना करते रहिएगा। ठीक है सर। वो तो आपको वैसे भी करना होगा ना। हाँ जी सर, लेकिन वही ताकि वो तो चलता आ रहा है सर। वो अब तरीका तो सर आज आपने बताया, हम तो पहले से करते आ रहे हैं उसको सर। अच्छा, आपने सॉल्व कर लिए सब पहले ही? आप तो सर बोल रहे थे साथ के याद करते रहे। तो आपका सारा हो गया, कंप्लीट हो गया? नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुआ सर, लेकिन काफी हो गए थे। ऐड ऑन तो अभी सबको करना पड़ेगा सर, उस क्वेश्चन के नीचे अपना फ्रेम करके। नहीं तो आप या तो ऐसा कीजिए, अपना कंप्लीट करके हमें भेज दीजिए और हाँ उनकी ऑर्डरिंग हम ही यहाँ से कर देंगे। हम उतना पोर्शन खाली उसके अंदर से एडिट कर लेंगे,
क्वेश्चन उसके अंदर एडिट करके भेज देते हैं क्लास में फिर हम। और या वो काम आप खुद ही कर लीजिए कि खाली क्वेश्चन उसके अंदर से पीडीएफ तो बनाएंगे, उतना पोर्शन उसके अंदर स्निप कर करके निकाल लीजिए और वर्ड की फाइल में सब पेस्ट कर दिए ले जाके, सिर्फ क्वेश्चन स्निप कर लीजिए उसमें से। ठीक है सर, कर लेंगे सर। क्योंकि क्लास में यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, वरना फिर बाद में कोई कहेगा क्वेश्चन नंबर किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, वो चेक करने में परेशानी होगी। ठीक सर। ये आप लोग कर डालें और ये 9-10 अक्टूबर फाइनल हो गई हैं और 8 अक्टूबर को आप लोग सबमिट कर देंगे। तो इसका हम वो बना के भेज देंगे, लिंक बना के भेज देंगे आप लोग के पास और उसी के अंदर आप सबमिट कर दिएगा इन प्रॉब्लम्स को। आप सिंगल पीडीएफ बनाएंगे या मल्टीपल पीडीएफ बनाएंगे? सर वर्ड में ही वही सिंगल पीडीएफ देता हूं। आप एक ही पीडीएफ बना देंगे सर। हाँ तो ठीक है, सिंगल पीडीएफ बना दीजिएगा, 20 प्रॉब्लम्स की सिंगल पीडीएफ बना दीजिएगा। ठीक है, ललित अटेंडेंस ले लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ले लिए सर।